Dear students, we are reading chapter number 1 from your subject science. Yesterday we all have discussed about large scale cultivation of vegetables, fruits and flower plants is called horticulture, and the crops sown in October, November and harvested in March, April in our country are called Rabi crops, and the crops sown in June, July and harvested in September, October are called खरीफ crops. इतना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. Now I am going to teach you about agricultural implements. That also we have discussed yesterday. The various agricultural practices need certain tools. यानी डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर को करने के लिए, खेती करने के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड सच टूल्स आर नोन एज इम्प्लीमेंट्स. इस टाइप के टूल्स को क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं. दस द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी खेती करने के दौरान जो डिफरेंट टाइप के टूल्स चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. सम कॉमन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स आर, कुछ एक कॉमन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स हैं. वो कौन कौन से? प्लाऊ, सीड ड्रिल, खुरपा एंड होल. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लाऊ. The plough is used for loosening and turning of the soil. Ploughs are made of wood or iron. क्या काम होता है प्लाऊ का? प्लाऊ एक्चुअली लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. यानी प्लाऊ का यूज़ किया जाता है सॉइल को, जो ढेले होते हैं सॉइल के, उसको लूज करने में और उनको उलटने पलटने में. प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. प्लाउ किसके बने होते हैं? वुड और आयरन के. वुड मीन्स लकड़ी एंड आयरन मीन्स यू नो वेरी वेल लोहा. ट्रेडिशनल प्लाउज मेड ऑफ वुड और आयरन. जो नॉर्मली प्लाउज होते हैं वो वुड और आयरन के बने होते हैं और ड्रिवन बाय एनिमल्स और बाय अ ट्रैक्टर. या तो एनिमल्स उसको चलाते हैं, एनिमल्स की पीठ पर पूरा एक मशीन टाइप की बना करके लकड़ी के थ्रू उसको एडजस्ट किया जाता है, या ट्रैक्टर्स में इन प्लाउज को अटैच कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं कल्टीवेटर. नाउअडेज कल्टीवेटर इज यूज्ड इन फील्ड. अ प्लाउ कंटेन्स अ थिक triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. You are able to look it in diagram. This is plow shaft and this one is on the lowermost portion there is plowshare. This is the diagram of plow. And on the another hand there is handle which is taken up by the man, or it is connected with this handle is connected with the tractor, then it is known as cultivator. The next implement is hoe. The implement called hoe is used for removing weeds and for loosening the soil. Once again this implement hoe is also used for removing weeds. Weeds means जो अनवांटेड ग्रासेस होती हैं. आपने हमेशा देखा होगा किसी भी फील्ड में जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं उसके अलावा भी कुछ अनवांटेड ग्रासेस भी अपने आप जर्मिनेट हो जाती हैं. इन्हीं ग्रासेस को बोलते हैं वीड्स और हुई इन्हीं वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. और वंस अगेन सॉइल को लूज़ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है. लूज़ करने के मीन्स वो जो बड़े ढेले होते हैं सॉइल्स को, उनको जब उसके ऊपर होई चलता है तो वो ढेले टूट करके छोटे पार्टिकल्स में सॉइल के कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होई?
This is the structure of hoe. Look in the diagram. It consists of a long rod of wood or iron. You are able to see a strong, broad and bent plate of iron fixed at one end of the long rod. This is bent plate of iron. Okay. This bent plate acts like a blade. You are watching. This bent plate acts like a blade. At the another end, of the rod, a beam is attached, and the beam is placed on the bullock necks. Here is a beam that is attached on the end of the rod, and the beam is placed on the bullock necks. Now, I am going to discuss about the next implement, that is seed drill. This is seed drill. It is used for sowing the seeds. The seed drill sows the seed uniformly at proper distance and depth. You are watching. A seed drill consists of a set of long vertical tubes with a funnel-shaped seed bowl at the top. Here is a seed bowl at the top. The drill is attached to a plow. Seeds are placed in the seed bowl. As the plow moves, it makes furrows in the soil and the seeds are sown. It also covers the seeds with soil after sowing. यानी सीड्स को ये सो करता है यानी बोता है ये सीड ड्रिल. इसकी हेल्प से बोया जाता है सीड्स को, और बोने के बाद ये उन सीड्स को सॉइल से कवर भी करता जाता है. दिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ सीड्स. इससे क्या होता है कि जो सीड्स वेस्ट हो जाते हैं हमारे फील्ड में, इन सारी एक्टिविटीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है. दिस सीड ड्रिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर. Now, I am going to teach you about trowel, commonly known as khurpa, and harrow. Trowel and harrow are used for loosening the soil and removing the weeds simultaneously. Mean to say that ट्रॉवेल मीन्स खुरपा. इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? वंस अगेन लूजनिंग द सॉइल. आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स साइमल्टेनियसली. यानी ये लूजनिंग भी करता है सॉइल की खुरपा, और साथ ही साथ जो अनवांटेड वीड्स हैं उनको भी ये निकाल करके बाहर कर देता है हमारे क्रॉप से. Now I am going to talk about the basic practices of crop production. Crop production involves many steps and conditions to obtain a good crop. These must be followed. These are some guidelines that must be followed to crop production. एंड बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें एक अच्छी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए करने होते हैं, जो फार्मर्स को करने चाहिए एक अच्छी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए. इन्हीं सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बोलते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ओके.
The basic practices of crop production are selection of location and nature of soil, यानी किस क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है उसके बेसिस पे लोकेशन और सॉइल का नेचर को सेलेक्ट करना ज़रूरी है, यानी किस टाइप की सॉइल में कौन सी चीज़ की कल्टीवेशन बेहतर हो सकती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। लेवलिंग एंड मैन्योरिंग क्या है? मैन्योरिंग मीन्स उसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज करना, खाद देना। लेवलिंग मीन्स प्लेन करना उसको अच्छी तरह से। एंड प्लॉइंग मीन्स मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको ब्रोकन डाउन करके स्मॉल टिनी पार्टिकल्स में उनको ब्रोक करना, इट इज़ प्लॉइंग एक्चुअली। तो ये भी ज़रूरी है, ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल और बाय अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स। किस सीड का सेलेक्ट करना है, किस टाइप के सीड को सेलेक्ट करना है जिससे एक अच्छी पैदावार मिले, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड इरिगेशन, ऑफ कोर्स इरिगेशन मीन्स सिंचाई, उसका बहुत ध्यान रखना है एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड लाइट इरिगेशन, यानी मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का क्या रेशियो आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। या इन वन वर्ड यू कैन से दैट मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जब भी आप इसमें डालेंगे, अपने खेतों में फार्मर्स डालेंगे, उसके बाद एक हल्की सी इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी है उसमें, अदरवाइज़ प्लांट्स क्या हो जाएगा, जल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज दीज फर्टिलाइज़र्स आर chemicals actually. Protection of weeds, weedlings by using trowel, यानी समय समय पर खुरपे का यूज़ करके, ट्रॉवेल का यूज़ करके जो अनवांटेड ग्रासेस हैं, वीड्स हैं, उनको निकालते रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और समटाइम्स से वीडिसाइड्स की भी का भी छिड़काव करने की ज़रूरत है, जिससे अपने आप ये अनवांटेड ग्रासेस नहीं उगती हैं। अगर इन वीडिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो अनवांटेड जो वीड्स निकल आते हैं, वीड्स मीन्स ही अनवांटेड ग्रास, तो वो भी जो है उनकी ग्रोथ भी रुकती है। देन क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड प्लांट डिजीजेस बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, इट इज़ नोन एज क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी टाइम टाइम पर पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटाणुनाशक, यानी एक ऐसी मेडिसिन जिसका छिड़काव करने पर जितने भी पेस्ट्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, अनवांटेड इंसेक्ट्स होते हैं, वो मर जाते हैं। उनका भी छिड़काव टाइम टाइम पर बहुत ज़रूरी है टू कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड प्लांट डिजीजेस। You have seen there are so many types of diseases also in the plants. लीव्स में आपने देखा होगा बहुत सारे छेद हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ लग जाती है जिससे बिल्कुल वो भुरभुरा सा हो कि लीफ टूट के गिर जाती है। तो इन सारे डिजीज़ को रोकने के लिए प्लांट्स में क्रॉप प्रोटेक्शन करना पड़ता है और टाइम टाइम पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना पड़ता है। क्रॉप प्रोटेक्शन आपने समझ लिया। नाउ हार्वेस्टिंग, threshing and winnowing by using thresher or a combine, यानी जब फसल पूरी पक करके तैयार हो जाती है उसके बाद ये 3 जो प्रोसेसेस हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, वो हमारे फार्मर्स को यूज़ करने पड़ते हैं। दैट इज़ हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। आई हैव टॉट यू दिस इन अर्लियर सेक्शन। एंड फाइनली स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी हार्वेस्टिंग के बाद फूड ग्रेन्स जो हमारी पैदावार हुई, जो हमारा अनाज निकल के आया, उसको अच्छी तरह से हमें स्टोर करने की भी ज़रूरत है, अदरवाइज़ साल भर की पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। After this, I am going to complete this topic today, and tomorrow we will meet once again to describe the rest part of the chapters.